Good morning, everyone. ओके सो क्या हो गया? 10 मिनट हो गए लिंक दिया हुआ। 10 क्या 15 मिनट हुए। आज ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं है, ओनली 25 25 ही नहीं। हाँ, ओके, एनीवेज we'll start with our lecture. So I guess yes, that is I have given you second assignment in last week. So today I will give you a submission link for the second assignment. So you will have 2 days. आज का दिन, कल का के दिन भी ले लो एंड सबमिट इट टिल next day. So let's start with the unit number 3. We have started, if you remember, so we have started with unit number 3, that is MIS, Management Information System. That particular thing we have started in the last lecture. I hope आपको आवाज properly आ रहा है सबको एंड स्क्रीन भी दिख रहा है सबको. So just let me just do the settings for my laptop and then we'll start with the, just wait for a minute. Just wait, guys. Though it is appearing on your screen that my laptop is working properly, but the thing is my screen is not proper. The screen is actually a dancing screen, so I cannot see that particular screen properly. But yes, आपके स्क्रीन पे जब मैं उसको प्रेजेंट करता हूँ तो वो आपको ठीक से दिखाई देता है. ये एक प्रॉब्लम है सबसे बड़ा. So just wait. I am adjusting that particular part. Okay, so I guess आपको स्क्रीन दिख रहा है properly. Yes, in last lecture, if you remember, we have started with our unit number 3, that is concept of MIS reports in computer environment. So basically, here we are going to talk about MIS, that is Management Information System.
So some basic concepts we have seen in last lecture, that is what exactly MIS is, and how we are going to use that MIS in our business process. So that particular thing we have seen. Even we have seen historic development of information system, I guess. ये हमने देखा है. Yes, tell me. I guess we have seen with this particular part. Historic development हो गया ना अपना. All kinds of systems we have seen. अरे बोलो जल्दी. So this triangle we have seen, that is this is about the historic development. So ये हो चुका है अपना, and this particular triangle. So what are the responsibilities of the employees at each level? So this particular part we have seen. Yes. Okay. Now today we will start with वही same thing MIS ही, और थोड़ा सा डीपर नॉलेज देखेंगे और थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे MIS को. So as you can see on the screen, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि MIS, that is Management Information System, is basically divided into three parts. First one is that is management, second one is about information, and third one is about the system. So we will see all these three parts and then explore some of the benefits, advantages, disadvantages, and multiple more concepts regarding MIS. So let's start with the first one, that is management. Now, as the name suggests, management. So we can define management in many ways, like managing a man tactfully, or management is an art of getting things done by others. In short, management is what? That is managing a particular activity, whether it is flowing in a right direction, whether you are carrying out that particular activity in a right way or not, that is known as a management. Okay. So in other words, management is what? So management covers the planning, controlling, and administration of the operation of a concern. So इतना बात जान लो कि मैनेजमेंट मतलब क्या. मैनेजमेंट मतलब जो ओवरऑल आपका बिजनेस प्रोसेस होता है, वॉट एवर बिजनेस एक्टिविटी यू डू, तो उस एक्टिविटी को प्लानिंग से कंप्लीट करने तक वॉट एवर यू डू ना, उसको हम कहते हैं मैनेजमेंट. दैट इज प्लानिंग करना, उस प्लानिंग को प्रॉपरली एग्जीक्यूट करना, ड्यूरिंग द प्रोसेस एग्जीक्यूशन उस एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करना, उस एग्जीक्यूशन में एडमिनिस्ट्रेशन करना. तो ये वॉट एवर द एक्शंस यू डू while completing a particular task is known as a management activity. So ये तीन इम्पोर्टेंट टास्क आते हैं आपके मैनेजमेंट में. फर्स्ट वन प्लानिंग आप करते हो, उसी प्लानिंग को एग्जीक्यूट आप करते हो एंड कंट्रोल करते हो, एंड देन एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है. सो द टॉप मैनेजमेंट हैंडल्स प्लानिंग, मिडल मैनेजमेंट कॉन्सेंट्रेट्स ऑन द controlling, and the lower management is concerned with the actual administration. So management के भी तीन टाइप्स दिए. तो जो हायर होता है, हायर लेवल मैनेजमेंट, दैट इज टॉप मैनेजमेंट, तो उनका काम होता है प्लान आउट करना. जो मिडल लेवल मैनेजमेंट, तो वहाँ पे देखो हायर लेवल मैनेजमेंट मतलब कौन, तो जो सीईओ एंड जो ऊपर के जो एक्सपर्टीज जो रहेंगे ना, सब टॉप लेवल, तो उनका काम होता है प्लान आउट करना. जो मिडल लेवल, दैट इज मैनेजर्स एंड ऑल जो रहेंगे, प्रोजेक्ट मैनेजर है ना, सेल्स मैनेजर, एग्जीक्यूटिव मैनेजर एंड सो ऑन, तो इनका काम रहेगा दैट इज जस्ट टू कंट्रोल ऑल द एक्टिविटी, टू कीप ट्रैक ऑफ एवरीथिंग, दैट इज जो भी टास्क दिया है वो टास्क कैसे कंप्लीट हो रहा है, क्या हो रहा है, तो वो कंट्रोल करने का काम होता है मिडल मैनेजमेंट का. एंड लोअर मैनेजमेंट, सो ऑन ग्राउंड ऑन फील्ड जो एम्प्लॉइज काम करते हैं, दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ लोअर मैनेजमेंट. सो उनका कंसर्न क्या होता है, दैट इज विद द एक्चुअल एडमिनिस्ट्रेशन. सो जैसे टीम लीडर बोलो, तो टीम लीडर के अंदर 10-5 जन का टीम रहेगा, तो उनसे काम करवा के लेना. सो ग्राउंड लेवल पे बैठ के जो काम करवा के लेता है, दैट इज एडमिनिस्ट्रेशन जो करता है, दैट इज लोअर मैनेजमेंट. So that is all about the management word. Next one is about the information. अब information के बारे में क्या ही बात करें, क्योंकि पहले 2 यूनिट में तो हमने बहुत सारा information के बारे में बात किया है. And we all know that is the data. Whenever we are going to deal with the data, तो डेटा जो होता है वो हमेशा रॉ फॉर्मेट में होता है.
एंड उस रॉ फॉर्मेट को प्रोसेस करके जब आप डेटा यूज करते हो फॉर योर बिजनेस प्रोसेस एक्टिविटी, देन इट इज नोन एज इंफॉर्मेशन. सो इंफॉर्मेशन सिंपली मीन्स प्रोसेस डेटा, इतना याद रखो. ओके, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू मीनिंगफुल एंड यूजफुल फॉर्म फॉर अ स्पेसिफिक यूजर. Now, information is quick becoming an innermost source in numerous enterprise. अब ये तो हमने देखा पहले 2 यूनिट में कि इंफॉर्मेशन इज बेसिकली नाउ करंट ट्रेंड. अगर आप देखोगे वॉट एवर यू डू यू इन योर बिजनेस प्रोसेस, यू डू वर्क अ लॉट ऑन कंप्यूटर्स, एंड कंप्यूटर की बात जब आती है तो इंफॉर्मेशन इज अ क्रिटिकल पार्ट, इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन योर बिजनेस प्रोसेस. So information is what? That is whatever you do in your business process, whatever activities you perform, definitely you are going to needed a data. And वो data जो होता है वो आप अलग अलग sources से collect करते हो, and that's why वो raw data जो है, that is जो sources से आप data collect करते हो, that particular data you cannot use directly for the processing activities, and hence we need to process that data. So information is what? So information simply means process data. तो जो raw data है उसके ऊपर process करके whatever you get उसको हम कहेंगे info. That is meaningful data बोल सकते हो आप. Okay? So information in MIS means the process data that helps the management in planning, controlling and operation. देखो अभी ऊपर जो हमने देखा word management का, वही मैनेजमेंट का जो एक्सप्लेनेशन देखा, दैट इज मैनेजमेंट में क्या क्या होता है, तो प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन होता है. तो अब आगे कंटिन्यू कर रहे हैं इसी डेफिनेशन को मैनेजमेंट के, दैट इज इंफॉर्मेशन इज व्हाट? तो इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस डेटा, ये हमने देखा, बट इसका यूज क्या रहेगा? तो प्रोसेस डेटा विच विल हेल्प द मैनेजमेंट इन प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड ऑपरेशंस. So data means all the facts arising out of the operations of the concern. So data is process. Process मतलब क्या होता है? That is it is recorded, मतलब store किया है, organize करके रखा है properly, summarize करके रखा है, compared करके रखा है, and finally presented to the management in the form of MIS report. So this is how we use the information for smoothly conduction of any of the business process activity. That is आप प्लानिंग करते हो तो वहाँ पे भी आपको इन्फॉर्मेशन लगेगा. इफ़ यू आर डूइंग व्हाट वी कैन से एडमिनिस्ट्रेशन, तो उस ऑपरेशंस के लिए भी डेटा लगेगा. इफ़ यू आर एग्जीक्यूटिंग अ पर्टिकुलर ऑपरेशन तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी वी विल रिक्वायर इंफॉर्मेशन. एंड उस इंफॉर्मेशन को, प्रोसेस डेटा को जब आप यूज करते हो प्रॉपरली, एंड व्हेन यू प्रेजेंट इट टू द मैनेजमेंट, इट इज नोन एज MIS रिपोर्ट्स. तो रिपोर्ट के थ्रू ही हम क्या करते हैं? प्रेजेंट करते हैं. Okay, now information can be defined as meaningfully interpreted data. Yes, आप interpret भी कर सकते हो डेटा को. So in case that is raw data के ऊपर जब आप प्रोसेस करोगे तब जाके बनता है interpreted data. So as you can see यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है. If I give you a number 75, so it does not make any sense on its own, है ना? अगर मैं आपको ये 75 ये नंबर बता देता हूँ 75, तो ये कुछ समझ में नहीं आता. इवन चलो ये भी नहीं, मैं आपको सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूँ. मैं आपको बोल रहा हूँ चलो कल 8 बजे मिलते हैं. ठीक है, मैंने क्या बताया आपको? कल 8 बजे मिलते हैं. अब इसमें आपको क्या पता चला कि जस्ट मैंने आपको एक टाइम दिया है 8 बजे एंड मिलना है. नाउ द थिंग इज, अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस है. तो 8 बजे मिलना है वो तो ठीक है, लेकिन मिलके क्या क्या करना है? इफ आई एम गोइंग टू टेक योर लेक्चर, इफ आई एम गोइंग टू टेक योर टेस्ट और सो ऑन, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं. सेकेंड थिंग इज, अब मैंने और एक चीज बोला कि कल 8 बजे मिलते हैं. अब 8 बजे 8 बजे मतलब मॉर्निंग के या इवनिंग के? कौन से 8 बजे ये हमको मालूम नहीं है. चलो अगर मिलते हैं तो कहाँ पे मिलते हैं ये हमको मालूम नहीं है. दैट मीन्स वॉट एवर द स्टेटमेंट आई हैव पास, दैट इज कल 8 बजे मिलते हैं, तो इसमें से वी आर नॉट गेटिंग एनी इंफॉर्मेशन
दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट डज नॉट मेक एनी सेंस ऑन इट्स ओन, कुछ समझ नहीं रहा है, सिर्फ इतना पता चल रहा है कि 8 बजे मिलना है बस, तो क्या? सो इट इज जस्ट अ रॉ डेटा टू बी प्रिसाइज। एंड अगर मैं आपको बोलूंगा कल मॉर्निंग को 8 o'clock यू विल हैव अ लेक्चर एंड वी विल मीट इन द लेक्चर, देन आपको क्लियर कट आइडिया हो जाएगा कि कल सुबह 8 बजे मैं आईटी का लेक्चर लेने वाला हूँ, तब मैं आपको मिलूंगा, तब जो भी डाउट्स वगैरह रहेंगे वो आप क्लियर कर लेना एंड सो ऑन, जो भी है। सो ये अगर मैं ऐसा स्टेटमेंट पास करता हूँ तो आपको पता चल जाएगा कि यस ये ऐसा ऐसा इंफॉर्मेशन है। सो दैट इज नोन एज अ इंफॉर्मेशन, और वी कैन कॉल इट एज कि जो डेटा पहले था उसको अभी मैंने क्या किया, इंटरप्रेट किया। सो आई होप आपको ये इंफॉर्मेशन एंड डेटा का जो डिफरेंस है वो समझा रहेगा, एंड ज़्यादा कुछ ये करने की ज़रूरत भी नहीं क्योंकि सेकेंड यूनिट में ऑलमोस्ट हमने बहुत टाइम उसके ऊपर वेस्ट किया है। नेक्स्ट वन दैट इज सिस्टम। यस, सिस्टम भी हमने देखा है कि व्हाट एग्जैक्टली सिस्टम इज। इफ यू रिमेंबर, सिस्टम के बारे में मैंने आपको बताया था कि सिस्टम इज एनीथिंग व्हाट वी कैन कॉल इट एज कि जो आपका ऑब्जेक्टिव या जो आपका टास्क जो है वो कंप्लीट करने के लिए आपको हेल्प करता है, दैट इज नोन एज अ सिस्टम। नाउ द थिंग इज व्हेनेवर वी आर गोइंग टू वर्क ऑन अ पर्टिकुलर टास्क, ऑब्वियसली वी विल रिक्वायर सम इनपुट। वो इनपुट आप सिस्टम को पास करोगे, system will do processing on that input and then it will give you the output. So basically system is what? System accepts the input, process the input and gives the output. So that is known as a system. So you can see here system can be defined as set of elements joined together for common objective, a group of interrelated or interacting elements forming a unified whole system, a group of interrelated components working together towards a common goal by accepting input and producing output in an organized transformation process that is known as a system. Now system mein obviously we are going to use information and that's why it is known as the information system, and then we are going to manage all that manage the system with the help of information, and that's where this MIS का पूरा ये कीवर्ड आ रहा है, that is management information system. So thus MIS means a system for processing data in order to give proper information to the management for performing its function. So समझ लो MIS का पूरा मीनिंग क्या है, तीनों का जो पार्ट है दैट इज पहला तो मैनेजमेंट, देन इंफॉर्मेशन एंड सिस्टम। कैसे करना देखो। सो MIS मतलब क्या है? सो इट इज ऑब्वियसली इट इज अ सिस्टम, बट ये सिस्टम क्या करता है, इट प्रोसेस द डेटा एंड आपको इंफॉर्मेशन देता है, डेटा को प्रोसेस करके इट विल गिव यू इंफॉर्मेशन एंड दैट इंफॉर्मेशन विल बी यूज बाय द मैनेजमेंट फॉर परफॉर्मिंग इट्स फंक्शन, दैट इज एक्टिविटीज कैरिड आउट करने के लिए वॉट एवर इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड, वो इंफॉर्मेशन ये सिस्टम आपको प्रोवाइड करेगा एंड ये सिस्टम से मिला हुआ इंफॉर्मेशन यू आर गोइंग टू यूज फॉर मैनेजिंग ऑल द एक्टिविटीज। दैट्स हाउ द MIS is. So these three components of MIS provides more complete and focused definition where system suggests integration, holistic view, information stand for processing data, and management is the ultimate user or decision maker. So management is the one who uses this particular system, who uses the information to carry out effective transactions. उनको डिसीजन मेकर्स भी बोला जा सकता है। सो आई होप ये MIS का जो कंसेप्ट है, ये जो MIS को 3 पार्ट में जो हमने डिवाइड किया है ये आपको समझा रहेगा। यस बोलो जल्दी। ओके चलो, नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट वन दैट इज MIS का सॉर्ट ऑफ आर्किटेक्चर इज देयर, कौन से कंपोनेंट्स आर नीडेड फॉर MIS। You can see on the screen structure of MIS is given. So ये एक important question है। Now we will see this particular question. As you can see, a management information system is an organized combination of किसका combination है देखो, people, hardware, communication network and data sources
that collects, transforms and distributes information in an organization. तो पहला ये एक बात समझ लो कि MIS का जहाँ पे भी जिक्र होगा तो इतना बात समझ लो, MIS का फुल फॉर्म इज मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। मतलब MIS का जहाँ पे भी जिक्र होगा मतलब ये एक सिस्टम है, एंड ये जो सिस्टम है ये क्या प्रोवाइड करता है, अलग अलग कंपोनेंट्स का यूज करके इट विल डेफिनेटली गोइंग टू प्रोवाइड यू ओनली इंफॉर्मेशन। आपको क्या प्रोवाइड करेगा, ये सिस्टम हमेशा आपको इंफॉर्मेशन ही प्रोवाइड करने का काम करेगा। ओके, सो MIS इज एन ऑर्गेनाइज्ड कॉम्बिनेशन ऑफ पीपल, हार्डवेयर, कम्युनिकेशन नेटवर्क एंड डेटा सोर्सेस, जो कलेक्टिवली आपको क्या प्रोवाइड करता है, विच कलेक्ट्स, transforms and distributes the information in an organization. So a number of physical components we use in MIS such as hardware, software, database, personal and procedures. So you can see here this is the structure of your MIS, जिसमें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ऑब्वियसली आप यूज करोगे, डेटाबेस जहाँ पे डेटा को स्टोर करना है वो आप यूज करोगे, सम ऑफ द प्रोसीजर्स it will be required to handle or to find out the information. Then operating personnel मतलब employees who works on that particular system. Input and outputs, जैसे मैंने बताया कि सिस्टम है तो जो भी सिस्टम रहेगा उस सिस्टम को भी need to give the input, then only we are going to get the output. तो input output का combination should be there. And finally मीडियम एंड मैसेज, तो कहाँ से आप डेटा पास करोगे, कहाँ से इनपुट दोगे, कहाँ से आउटपुट लोगे, सो दैट इज व्हाट द मीडियम एंड मैसेज का मीनिंग इज। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ और कंपोनेंट्स ऑफ MIS। नाउ वी विल सी वन बाय वन इन डिटेल। द फर्स्ट वन हार्डवेयर से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सो यू कैन सी हार्डवेयर, all physical components of a computer system compose the computer hardware. Now important components include CPU, input output devices, storage unit and communication devices such as fiber optic cables or wireless networks and so on. So I hope आपको ये समझा रहेगा हार्डवेयर में क्या क्या पार्ट आता है। ओके, इंफॉर्मेशन सिस्टम को प्रोसेस करने के लिए, दैट इज इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू यूज कंप्यूटर। अब कंप्यूटर जहाँ पे यूज होता है तो कंप्यूटर में जो भी कंपोनेंट्स रहेंगे फिजिकल कंपोनेंट्स, उसको आप कंसिडर कर सकते हो एज अ हार्डवेयर। ओके, देन ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर, तो जब आप कंप्यूटर का यूज कर रहे हो तो सिमिलरली उसी वक्त उस इंफॉर्मेशन या डेटा को प्रोसेस करने के लिए ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू यूज सम ऑफ द टूल्स। सो वो जो टूल्स है उन टूल्स को ही हम बोलेंगे सॉफ्टवेयर। सो सॉफ्टवेयर प्रोवाइड्स the interface between users and the information system. So जो हम लोग जो यूज करते हैं स्क्रीन पे, जो हम काम करते हैं, जो दिखाई देता है आपको सामने, दैट इज नोन एज ए इंटरफेस। तो वो इंटरफेस प्रोवाइड करने का काम जो है वो कौन सा सॉफ्टवेयर करता है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो हम मोबाइल पे काम करते हैं, लैपटॉप पे काम करते हैं, तो वहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तब जाके आपको इंटरफेस दिखाई देता है। So whether you are working on desktop or laptop, it will be that is Windows operating system. If you are working on your mobile phones, then it will be considered as Android operating system. So जब operating system नहीं होगा आपके पास तो you cannot interact with the machine. So सॉफ्टवेयर में सिस्टम सॉफ्टवेयर भी आते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी आते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज बेसिकली यूज टू प्रोवाइड द इंटरफेस। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो आपको टूल्स प्रोवाइड करते हैं टू कंप्लीट योर स्पेसिफिक टास्क, तो इसीलिए आप सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। सो यू कैन सी हियर कम्युनिकेट करने के लिए या इंटरेक्ट करने के लिए वी आर गोइंग टू यूज सिस्टम सॉफ्टवेयर, एंड जो वॉट एवर डेटा यू हैव कलेक्टेड उस डेटा को प्रोसेस करने के लिए वॉट एवर टूल्स यू आर गोइंग टू यूज टू अचीव योर स्पेसिफिक टास्क, those particular tools are known as application software. So in MIS we use software also. So ये दो पहले structure हो गए आपके hardware and software. Now we will move to the third one, that is about database. Yes, of course, as you can see MIS में सबसे key important role play करता है, that is information. अब ये information कब बनता है,
So when we first collect the data from various external sources, so whatever data we have collected, उस डेटा को we need some storage place, जहाँ पे हम इसको क्या कर सके, स्टोर कर सकते, क्योंकि स्टोर करने के बाद ही फिर उसके ऊपर आप क्या करोगे, वॉट एवर प्रोसेसिंग एक्टिविटीज यू नीड टू परफॉर्म, तो वो प्रोसेसिंग आप कब करोगे, until and unless you have not stored that particular data, तब तक आप कर ही नहीं सकते. So one storage place is required to store all the data which we have collected, एंड सिर्फ स्टोर नहीं करना है, तो उनको प्रॉपर फॉर्मेट में ऑर्गेनाइज वे में आपको क्या करना है, स्टोर करना है. एंड दैट्स वेयर द थर्ड कंपोनेंट या थर्ड स्ट्रक्चर आता है MIS में. दैट थर्ड स्ट्रक्चर इज नोन एज डेटाबेस. So a database is what? It is a centrally controlled collection of organized data. So you can see here definition में दिया है कि what is it? So it is a collection of organized data. So it is a storage place. So data is stored in an organized and structured way to facilitate sharing and improve availability to those who need it. So ये काम क्या करता है डेटाबेस, तो डेटा को ऑर्गेनाइज एंड स्ट्रक्चर फॉर्मेट में स्टोर करने का, एंड देन जहाँ पे भी जरूरत रहेगा उसको शेयर करो विथ अदर्स, जिनको जरूरत है उनको उनके साथ शेयर करने का जो काम है, ये काम करता है आपका ये डेटाबेस, ये थर्ड कंपोनेंट. नेक्स्ट वन इज अबाउट द प्रोसीजर. सो एज अ नेम सजेस्ट प्रोसीजर, तो प्रोसीजर कैन आई से, प्रोसीजर मतलब मेथड्स. तो जब आप काम करते हो कोई भी, समझो अगर मुझे इंफॉर्मेशन, कोई भी एक इंफॉर्मेशन है उसके ऊपर कुछ प्रोसेसिंग करना है, तो ऑब्वियसली वॉट एवर वेन एवर आई एम गोइंग टू वर्क ऑन अ पर्टिकुलर थिंग, एंड जो भी मुझे काम करना है, तो उस काम को करने के लिए आई शुड हैव सम ऑफ द मेथड्स और सम ऑफ द रूल्स कि ये ऐसे करना है, वो वैसे करना है. तो दैट इज नोन एज अ प्रोसीजर. सो प्रोसीजर्स आर set of rules or guidelines that an organization establish for the use of computer based information system. So procedure is what? It is the rules, it is the guidelines. कौन से guidelines? तो आपके पास अभी जो कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम है, इस सिस्टम को how you should use that particular information system. So procedure is basically some set of rules and guidelines. Okay, now this particular procedures may vary from one organization to another organization. Yes, definitely it may vary from one department to another department also as per the requirement. So जो जैसे काम है आपको उस हिसाब से आपका जो what we can say ये set of rules and guidelines जो है ये क्या हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं. Okay, so I hope ये procedures क्या है आपको समझा रहेगा. Now basically three types of procedures are required for an MIS to operate effectively. तो कौन सा है, तो you can see the first one is user instructions, then second one instructions for input preparation, and finally operating instruction. So these are the three types of procedures we basically use for an MIS, that is management information system, to operate effectively. ओके तो यूजर इंस्ट्रक्शन में क्या आता है, तो ऑब्वियसली जो यूजर जो हैंडल करने वाला है उसके लिए के इंस्ट्रक्शंस रहेंगे, हाउ यू आर गोइंग टू हैंडल द इंफॉर्मेशन. सेकेंड जो है दैट इज इंस्ट्रक्शन फॉर इनपुट प्रिपरेशन, तो हाउ टू प्रिपेयर द इनपुट, क्योंकि ये सिस्टम है ना, एंड सिस्टम विल नॉट वर्क until and unless you provide the system with the input. So how to prepare the input, how to load the input in your system, so that particular thing उसके regarding जो rules and guidelines रहेंगे that will be there in the second one. And finally operating instruction, so how you are going to process that particular input, how you are going to operate on that input, and then कैसे output आपको मिलेगा, तो वो जो रहेगा वो थर्ड इसमें रहेगा. So this is all about the procedure. Now next one is about personal. जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, आफ्टर प्रोसीजर पर्सनल इज व्हाट, दैट इज द एम्प्लॉइज हु वर्क इन MIS environment. So the personnel in MIS function include computer operators, programmers, system analyst and manager.
सो ये अलग अलग जो रोल्स दिए हैं एम्प्लॉयज के, वो सब आपके पर्सनल के इसमें आते हैं. सो इन बेसिकली इन MIS एक्टिविटी, whoever इज वर्किंग ऑन अ कंप्यूटर, वो एंड फिर उस इंफॉर्मेशन को जो यूज करने वाले हैं वो, उन सबको हम पर्सनल्स बोल सकते हैं. सो पर्सनल्स मीन्स बेसिकली द एम्प्लॉयज who are working as a computer operator or a programmer or system analyst and manager. Even human resource requirements should be assessed by considering both the present system need and the future system growth also. So the quality of MIS, just a second. The quality of MIS personnel is a key factor in its effectiveness. Yes, of course. क्यों? क्योंकि MIS, ये जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, उसको हैंडल करने वाले जो एम्प्लॉयज है, उन एम्प्लॉयज को अगर आप प्रॉपरली हायर करोगे, if you have those quality employees with you, those who can handle MIS properly, then and only then you will get the effective output. क्योंकि अगर जिन बंदे को कंप्यूटर ऑपरेट करने नहीं आ रहा है, जिनको मालूम नहीं कैसे सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है, हाउ टू कैरी आउट द एक्टिविटी यूजिंग कंप्यूटर्स और व्हाट वी कैन से दैट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये जिसको मालूम नहीं है एंड वो अगर इस MIS में काम कर रहे हैं, then definitely you are not going to get what we can say desired goals. जो भी goals है आपके, वो आपको मिलने वाले हैं नहीं. So the quality of MIS personnel is a key factor in its effectiveness. An MIS manager needs a combination of both. तो जो मैनेजर होता है ना MIS का, सेकेंड लेवल पे अगर मिडिल लेवल के बारे में बात करेंगे, मिडिल लेवल मैनेजमेंट में, तो जो मैनेजर्स होते हैं, तो उनको ना एक्चुअली ये दोनों का उनके पास ये क्वालिटी होना चाहिए कि उनको टेक्निकल स्किल भी मालूम होना चाहिए एंड मैनेजरियल जो स्किल्स होते हैं मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, वो भी स्किल्स उनके पास होने चाहिए. ओके, अब टेक्निकल क्यों? बिकॉज वी आर यूजिंग IT, है ना. सो मैनेजमेंट करने के लिए वी आर यूजिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दैट्स व्हाई वी नीड बोथ स्किल. तो जो मैनेजर होता है उसको दोनों स्किल्स होने ज़रूरी है, देन ओनली वो इफेक्टिवली क्या कर सकता है, मैनेज कर सकता है. आई होप ये जो अभी हमने स्ट्रक्चर देखा, ये स्ट्रक्चर आपको समझा रहेगा. यस, यहाँ पे अगेन आप देख सकते हो कि बेसिकली हम MIS जो है वो किस लिए यूज़ करते हैं. तो MIS में एज यू कैन सी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ऑब्वियसली इसमें डेटा प्लेज इम्पोर्टेंट रोल, है ना. डेटा को ही हम इंटरप्रेट करते हैं इंफॉर्मेशन से, उसी इंफॉर्मेशन को एनालाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ सम ऑफ द सॉफ्टवेयर. Some people will be there who will work to evaluate that particular information and knowledge from the system, and उसके बाद whatever knowledge you will get, उस knowledge से we are going to that is जो भी आपके employees रहेंगे जो higher level पे काम कर रहे हैं, तो those particular employees will use that knowledge for decision making. So this is what an MIS is. सो आई होप ये MIS का जो बेसिक कंसेप्ट है ये आपको समझा रहेगा. जो अभी जो स्ट्रक्चर का पार्ट जो हमने देखा, तो स्ट्रक्चर समझा रहेगा आपको, सब कंपोनेंट समझे रहेंगे. यस, शैल वी मूव फॉरवर्ड. यस, यू आर गेटिंग माई वॉइस और नॉट? ओके, चलो. So here again they have given one final definition. So as you can see, the term MIS, Management Information System, refers to the data, equipment and computer programs that are used to develop information for managerial use. So this particular definition also you can use. ये MIS का use क्या है? So MIS is what? It refers to पहले तो data, then some of the tools we are going to use along with the computer program, and क्यों यूज करेंगे, तो we are going to develop information, and किसके लिए, तो वो जो मैनेजर्स काम करते हैं, दैट इज मैनेजरियल यूज के लिए जो इंफॉर्मेशन आप डेवलप करोगे सिस्टम के थ्रू, दैट इज नोन एज MIS. ओके,
So और भी कुछ definitions है, whatever definition you want, you can use those particular definition. You can see और भी नीचे दिए, that is MIS is an integrated user machine system for providing information to support operation, management and decision making function. Even one more is there given, that is it aims at meeting the information needs of managers, particularly with regard to current and post operations of the enterprise. So basically MIS is what? That is management of information system. So ये तीन चार जो definitions दिए, आप सब definitions properly, क्योंकि अगर MCQ आपका एग्जाम होता है तो obviously you need to understand this particular thing. fill in the blank के लिए वगैरह आ सकता है ये. Okay, so multiple definitions they have given. Just go through all those definition and उसके बारे में डिटेल में तो हमने देख ही लिया है कि MIS is what, कि important structures हमने दिखे हैं. अब इसी के ऊपर से now we will start with the first that is explore करना start करेंगे MIS को और अलग अलग वे से. तो first topic we will explore is about objectives of MIS. So पहले तो अभी ये एक बात याद रखो, दिमाग में डाल के रखो कि MIS is what. तो मैनेजिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम. अब जब इंफॉर्मेशन सिस्टम का बात आता है तो वहाँ पे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर तो आता ही है. एंड ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन जो है ये क्या करने वाला है, तो इंफॉर्मेशन को मैनेज करने वाला है. अब ये इंफॉर्मेशन कहाँ से आता है, तो ऑब्वियसली आप डेटा को जब प्रोसेस करते हो तो आपको मिलता है इंफॉर्मेशन. So frankly speaking, whenever we are going to work on the information, तो वहाँ पे पहले आपको डेटा कलेक्ट करना पड़ता है एंड देन उसको प्रोसेस करना पड़ता है. ये बात याद रखो. तो पहले कलेक्शन आता है, देन प्रोसेसिंग आता है एंड देन आपका इंफॉर्मेशन रेडी होता है. फिर उस इंफॉर्मेशन को आप ऑर्गेनाइज वे में, स्ट्रक्चर्ड वे में स्टोर करोगे, तब डेटाबेस आता है. अब उसके ऊपर प्रॉपरली काम करोगे तो एम्प्लॉइज का बात है. तो सो दीज आर द स्ट्रक्चर्स ऑफ द MIS. सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ MIS. सो द गोल ऑफ एन MIS आर टू इम्प्लीमेंट organizational structure and dynamics of the enterprise for the purpose of managing the organization in better way and capturing the potential of information system for competitive advantage. So basically ये जो इतना जो बड़ा गोल दिया है MIS का, इसका एक छोटे इस सिंपल वे में मैं आपको बता देता हूँ कि इसका एक्चुअल ऑब्जेक्टिव क्या है. सो MIS का ऑब्जेक्टिव क्या है कि वॉट एवर इंफॉर्मेशन यू हैव, तो उस इंफॉर्मेशन सिस्टम के ऊपर काम करके टू फाइंड आउट द नॉलेज एंड उस नॉलेज को इफेक्टिवली यूज करो. किसके लिए? फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन टू सर्वाइव इन कॉम्पिटिटिव मार्केट. तो कॉम्पिटिटिव मार्केट में इफ यू आर कम्पीटिंग विथ अदर्स, so definitely you should have that particular knowledge how to survive in the competition. तो competitive advantage अगर आपको देना है तो definitely you are going to work on that information system. So there are some of the basic objectives of MIS. तो पहला, as you can see, capturing a data. अब ये पूरा ना information के around ही काम करेगा क्या. So the first one is capturing data. So capturing contextual data or operational information that will contribute in a decision making from various internal and external sources of an organization. तो ये पहला आपका ऑब्जेक्टिव होता है कि कैप्चर करो डेटा को. देन सेकेंड होता है वॉट एवर यू हैव कैप्चर्ड ना, उसको अब क्या करो, प्रोसेस करो इनटू इंफॉर्मेशन. सो जब आप कैप्चर करते हो डेटा को तो दैट पर्टिकुलर डेटा इज कंसिडर्ड एज अ रॉ डेटा, क्योंकि आपने बाहर अलग अलग सोर्सेज से सिर्फ कलेक्शन का काम किया है. अब कलेक्ट करने के बाद उसमें बहुत सारे नॉइज हो सकता है, एरर्स हो सकते हैं, मिसिंग डेटा हो सकता है, तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं. सो अब आपको क्या करना है, नाउ वी नीड टू प्रोसेस द डेटा. सो सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज व्हाट, दैट इज प्रोसेसिंग अ डेटा. सो द कैप्चर्ड डेटा इज प्रोसेस इनटू इंफॉर्मेशन नीडेड फॉर प्लानिंग, organizing, coordinating, directing, controlling functionalities at strategic,
tactical and operational level. So whatever data you have captured उसको आपको क्या करना है, प्रोसेस करना है. एंड प्रोसेस करने के बाद आपने अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा इंफॉर्मेशन इज व्हाट, इंफॉर्मेशन इज बेसिकली प्रोसेस डेटा. सो प्रोसेस करने के बाद जो आपको मिलता है दैट इज नोन एज अ इंफॉर्मेशन. एंड उस इंफॉर्मेशन का यूज किसके लिए करोगे आप, तो प्लानिंग के लिए करते हो, ऑर्गेनाइज के लिए करते हो, डायरेक्ट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, स्ट्रैटेजीज बनाने के लिए, टैक्टिक्स बनाने के लिए, ऑपरेशंस कैरी आउट करने के. तो इन सब चीज़ों के लिए जो हम यूज करते हैं दैट इज नोन एज ए इंफॉर्मेशन, मीन्स प्रोसेसिंग ऑफ डेटा. अब प्रोसेसिंग मतलब क्या क्या करते हैं, तो वी मेक सम कैलकुलेशंस विद द डेटा, वी डू सॉर्टिंग ऑफ द डेटा, सॉर्ट करते हैं डेटा को, अलग अलग डेटा को क्लासीफाई करते हैं, एंड देन वी डू द समराइजिंग पार्ट. तो समराइज भी करते हैं. समराइज कैसे करेंगे, तो जैसे समराइज देखो, तो अगर आपका रिजल्ट लगता है, रिजल्ट लगने के बाद अगर मैंने आपको इंडिविजुअली हर सब्जेक्ट के बारे में पूछा कि कितना स्कोर आया, तो आप बताओगे सर 75 आउट ऑफ 75 इतना मिला, इस सब्जेक्ट में इतना, इस सब्जेक्ट में इतना. तो ये हो गया पूरा डेटा का इंफॉर्मेशन. बट अगर मैं आपको पूछता हूँ समराइज बताओ, इतना टाइम नहीं है मेरे पास, तो आप क्या बोलोगे, सर ए ग्रेड. सो ए ग्रेड इज बेसिकली समराइज फॉर्मेट, है ना, क्योंकि आपको जितना मिला था उसी का कैलकुलेशन करके आपको वो ग्रेड मिला है. तो वाई टू से ये सब्जेक्ट में इतना है, ये है, वो है. तो जो बेसिकली हम लोग परसेंटेज बताते हैं तो वो भी क्या हुआ, समराइज डेटा. तो समराइज डेटा भी आप क्या कर सकते हो, कैन बी कंसिडर्ड एज अ प्रोसेसिंग डेटा आल्सो. ओके, ये दो हो गए ऑब्जेक्टिव्स MIS के. नेक्स्ट वन इज इंफॉर्मेशन स्टोरेज. यस ऑफ कोर्स, कि अभी पहले कैप्चर हो गया, नाउ वी हैव प्रोसेस द डेटा. अब आपके पास इंफॉर्मेशन मिला है, अब उस इंफॉर्मेशन को प्रॉपरली स्टोर करना फॉर द फ्यूचर यूज, ये भी एक इम्पॉर्टेंट गोल होता है किसी भी MIS का. एंड हेंस यू कैन सी इंफॉर्मेशन स्टोरेज. सो वॉट एवर वी हैव नाउ प्रोसेस, वॉट एवर इंफॉर्मेशन वी हैव गेट, so it is needed to be stored for future use, and that's why the third objective is information storage. तो यहाँ पे नॉर्मली DBMS एंड ऑल हम लोग यूज करते हैं टू स्टोर द डेटाबेस, हम लोग स्टोर करते हैं, यूज करते हैं टू स्टोर द इंफॉर्मेशन. नाउ नेक्स्ट वन इज अबाउट इंफॉर्मेशन रिट्राइवल. एज द नेम सजेस्ट रिट्राइवल, तो वट एवर एंड वेर एवर वी हैव स्टोर्ड द इंफॉर्मेशन, अब वहाँ से उसको रिट्राइव करना फॉर वेरियस व्हाट वी कैन से बाय वेरियस यूजर्स. तो आपके जो एम्प्लॉयज है, अलग अलग एम्प्लॉयज को अलग अलग जो टास्क दिया जाएगा उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से वेन एवर नीडेड दे कैन रिट्राइव द इंफॉर्मेशन. एंड ये कहाँ से रिट्राइव करेंगे, तो ऑब्वियसली स्टोरेज से. सो जहाँ पे आपने स्टोर किया है वहाँ से ही आप क्या करोगे, इंफॉर्मेशन को रिट्राइव करोगे फॉर एज पर द रिक्वायरमेंट फॉर योर प्रोसेसिंग. नेक्स्ट वन इज इंफॉर्मेशन सर्कुलेशन. सो एज अ नेम सजेस्ट, सर्कुलेशन मतलब आप क्या करोगे, सर्कुलेट करोगे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. सो यहाँ पे वॉट एवर इंफॉर्मेशन यू हैव स्टोर्ड इनसाइड द स्टोरेज प्लेस, अब ये अगर एक से ज़्यादा लोगों को ज़रूरत है उस इंफॉर्मेशन का फॉर टू अचीव देयर और टू कंप्लीट देयर टास्क, तो व्हाट यू कैन डू, उसको आप रिट्राइव करो. एंड रिट्राइव करने के बाद सबको वो अलग अलग कॉपीज प्रोवाइड करो, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करो. दैट इज व्हाट वी आर डूइंग. हम सर्कुलेट कर रहे हैं, तो हम भी यूज कर रहे हैं, दूसरा भी यूज कर रहा है. दैट इज व्हाट सर्कुलेशन इज ऑल अबाउट. सो इंफॉर्मेशन और द फिनिश प्रोडक्ट ऑफ MIS शुड बी सर्कुलेटेड टू इट्स यूजर्स पीरियोडिकली यूजिंग द ऑर्गेनाइजेशनल नेटवर्क. सो नॉर्मली यहाँ पे कंप्यूटर नेटवर्क का बात आता है. बाय यूजिंग कंप्यूटर नेटवर्क वी कैन डू द इंफॉर्मेशन सर्कुलेशन. सो MIS का नीड क्या है फॉर इंफॉर्मेशन सिस्टम, सो यू कैन सी हियर. हाँ, आई होप ये जो ऑब्जेक्टिव्स जो है अभी ये 4-5 ऑब्जेक्टिव्स जो हमने देखे ये आपको समझा रहेगा कि दीज आर ये बेसिक ऑब्जेक्टिव्स. कैप्चर करना, प्रोसेस करना, देन इंफॉर्मेशन स्टोर करना, रिट्राइव करना एंड देन सर्कुलेट करना. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज अबाउट MIS नीड फॉर इंफॉर्मेशन सिस्टम. Now managers make decisions and ये decision making जो है it takes 4-fold path. कि क्या क्या ये decision making जो process होता है
इसमें क्या क्या किया जाता है. सो यू कैन सी हियर द फर्स्ट वन, अंडरस्टैंडिंग द नीड फॉर द डिसीजन और द अपॉर्चुनिटी. यस, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है उसमें सबसे पहले तो आपको समझना चाहिए कि बाबा डिसीजन लेना है तो क्यों लेना है भाई, एंड किसके रिगार्डिंग लेना है वो तो आपको मालूम होना चाहिए. देन नेक्स्ट वन, अगर लेना ही है तो वी नीड टू क्रिएट द अल्टरनेटिव्स फॉर कोर्स ऑफ एक्शन, कि अगर डिसीजंस लेने हैं एंड फिर डिसीजन लेने के बाद उसको एग्जीक्यूट करना है तो वी नीड टू आइडेंटिफाई सम ऑफ द अल्टरनेटिव्स. देन इवैल्यूएटिंग ऑल द अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन. देन जितने भी अल्टरनेटिव्स आपने फाइंड आउट किए उनको सबको इवैल्यूएट करो ताकि उसमें से द बेस्ट वन वी कैन यूज, एंड उसी बेस्ट को हम बोलते हैं फाइनल डिसीजन. सो डिसाइडिंग द राइट पाथ फॉर द इम्प्लीमेंटेशन इज द लास्ट व्हाट वी कैन से स्टेप. सो जब भी आपको डिसीजन लेना है तो डिसीजन के लिए मल्टीपल ऑप्शंस वी हैव हमेशा, बट उसमें से कौन सा राइट ऑप्शन है तो उसके लिए वी नीड टू डू द इवैल्यूएशन, एंड इवैल्यूएशन करने के बाद फाइनली जो भी आप राइट चॉइस या आपको लगता है कि यस दिस इज माय चॉइस एंड दिस आई एम गोइंग टू यूज, तो इसी को हम कहेंगे दैट इज डिसीजन. ओके. So MIS is an information system that provides information in the form of standardized reports and display for the manager. So MIS basically information का ही यूज करता है एंड उसी information का यूज करके इट प्रिपेयर स्टैंडर्डाइज रिपोर्ट, एंड ये रिपोर्ट जो है ना ये हाई लेवल मैनेजमेंट को दिए जाते हैं, सो दैट बाय लुकिंग एट दोज पर्टिकुलर रिपोर्ट्स those managers can use that information for what we can say decision making. So decision makers जो होते हैं obviously किसी भी organization में decision makers कौन होते हैं तो that is top level management. तो ये top level management है, उनको अगर decisions लेने हैं regarding a particular or specific task तो वो decisions लेने के लिए what they need that is information, and ये MIS जो है वो इसी information का effectively यूज करता है एंड उसके ऊपर से स्टैंडर्डाइज रिपोर्ट्स बनाता है, एंड दैट पर्टिकुलर रिपोर्ट्स आर यूज्ड बाय द मैनेजर्स फॉर मेकिंग राइट डिसीजन. सो डिसीजन मेकिंग टास्क के लिए MIS ज़्यादातर यूज किया जाता है. ओके. सो आई होप यहाँ तक आपको हमने जो भी किया है वो समझा रहेगा. Now we will stop here because I have another lecture in another class. So you can just remember यहाँ तक अपना हो चुका है. Yes, advantages and disadvantages next lecture से हम लोग start करेंगे. Okay, and let's see. Okay, output of MIS. Okay, चलो नेक्स्ट लेक्चर में विल स्टार्ट विद द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ MIS. आई होप आज जो हमने किया वो समझा रहेगा सबको. यस. ओके, सो लेट मी टेक द अटेंडेंस. जस्ट वेट. आज का डेट क्या है? आज का डेट 22nd. ओके. यस. चलो रोल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8 9 रुको 8 and 9. ओके. 10 भी है. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 24 and 26. okay. 27 28 29 30 31 32 30. okay. 32 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 48 directly
50, 49, 50, 51, 52, 53, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 301, 302, 303, 304, 5, 3 है, 4 है, 5 है, 7 है. Okay. Next one, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 18 है, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Okay, 28 and 30. Okay, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Okay, 34, 35, 36. 37, 38, 39, 48 directly, 40 and 43. ओके ओके. चलो और कौन बाकी है? रोल नंबर 2. चलो लगा दिया 2 आपका. चलो थैंक यू एवरीवन. हाँ 2 का लगा दिया बेटा. चलो थैंक यू.